Hello students, myself Anshuman Kale. I am Associate Professor at Shriram Group of Colleges, Muzaffarnagar. So today we will discuss electric field intensity due to continuous charge distribution. So first we will discuss continuous charge distribution. Then we will discuss examples of continuous charge distribution. Then we will discuss electric field intensity due to infinite long charge rod. And finally, electric field intensity due to infinite plane charge sheet. So starting from the topic continuous charge distribution. In continuous charge distribution, the charge is uniformly distributed on the conducting surface or in the bounded volume enclosed by the closed surface. So example of continuous charge distribution. The following are the examples of continuous charge distribution. Infinite long charge rod with linear charge density lambda. By linear charge density, we means the magnitude of charge present on the unit length of the rod. तो अगर मैं इस रॉड की 1 मीटर लेंथ की बात करता हूं तो उस 1 मीटर लेंथ पर हमेशा लैम्डा कूलम चार्ज मौजूद होगा और ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है. Infinite plane charge sheet with surface charge density sigma. So by surface charge density we mean the magnitude of charge present on the unit area of the surface. तो अगर मैं इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट का यूनिट एरिया या 1 मीटर स्क्वायर एरिया कंसीडर करता हूं तो उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर इस चार्ज शीट के हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज सिग्मा कूलम होगा और यह एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है. कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल विद surface charge density sigma. Again, surface charge density is the magnitude of charge present on the unit area of this conducting charge spherical shell. तो अगर मैं इस कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल का यूनिट एरिया और 1 मीटर स्क्वायर एरिया कंसीडर करता हूं तो इसके हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सिग्मा कूलम चार्ज होगा जो कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. देन नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. So by volume charge density we mean the magnitude of charge present on the unit volume of this non-conducting charge sphere which is solid from inside. तो अगर मैं इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की यूनिट वॉल्यूम को कंसीडर करता हूं या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को कंसीडर करता हूं तो इसकी हर 1 मीटर वॉल्यूम पर रो कूलम चार्ज होगा जो कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट इज infinite long charge rod.
So let us consider an infinite long charge rod with linear charge density lambda. मान लीजिए हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी कि इसकी हर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज मौजूद है. To determine the direction and magnitude of electric field intensity at a point P in space, we consider a closed cylindrical Gaussian surface of radius small r and length capital L passing through that point. इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड की वजह से यदि हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान और उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करना है, जो कि पॉइंट P इस इनफाइनाइट चार्ज लॉन्ग रॉड से डिस्टेंस r दूरी पर रखा हुआ है, तो हम इस पॉइंट P पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी लेंथ L है उसको पास कराते हैं. Thus the net charge present in the bounded volume enclosed by the closed cylindrical Gaussian surface is lambda L. क्योंकि इस रॉड की एक यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है और इस सिलेंडर की लेंथ कैपिटल L है, तो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बॉन्डेड वॉल्यूम में जो नेट चार्ज है वो लैम्डा L होगा. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया से, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज होगा जो इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बॉन्डेड वॉल्यूम में मौजूद है. तो गॉस लॉ से हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं. For an infinite long rod with uniform linear charge density lambda, the magnitude of electric field intensity at a point P, which is at a distance r from the rod, is given by E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. तो इस पॉइंट P पर इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान है, यदि ये पॉइंट P इस रॉड से r डिस्टेंस की दूरी पर है, वो दिया जाता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहां लैम्डा इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड की यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है. So from this formula E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, we can conclude that for a rod with high linear charge density, the magnitude of electric field intensity increases at a point. तो यदि हम कोई ऐसी रॉड को कंसिडर कर रहे हैं जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हाई है या ज़्यादा है, तो इसी पॉइंट P पर जो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान अधिक होगा. और अगर हम कोई ऐसी रॉड कंसीडर करते हैं जिसकी
यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान कम है, तो इसी पॉइंट P पर जो इससे सेम डिस्टेंस r की दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कम होगा। So also the electric field intensity at a point is inversely proportional to the distance r of the point from the rod. तो इस फॉर्मूले में भी हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर है वो पॉइंट P के रॉड से डिस्टेंस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So E is inversely proportional to r. Thus farther is the point from the rod, lower is the electric field intensity at a point. On other hand, if point is nearer to the rod, the electric field intensity is higher. तो यदि ये पॉइंट P रॉड से और अधिक दूरी पर चला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 1/r के प्रोपोर्शन में घटेगा, और यदि ये पॉइंट P इस रॉड से नजदीक आ जाए तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 1/r के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। The direction of electric field intensity at point P is perpendicular to the closed cylindrical Gaussian surface. तो जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पॉइंट P से पास कराई थी इन द इनिशियल स्लाइड, उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। So if n is the unit vector perpendicular to the direction of rod, then direction of electric field intensity will be along the unit vector and perpendicular to the rod. तो यदि मैं एक यूनिट वेक्टर n कैप को कंसीडर कर रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इस यूनिट वेक्टर n कैप के अलोंग होगी, जैसा हम पहले फिगर में देख रहे हैं कि ये क्लोज्ड गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर है। So from here itself we can conclude that electric field intensity at point P is always perpendicular to the infinite long charged rod, that is in the direction of unit normal vector n cap. Next is infinite plane charge sheet. Let us consider an infinite plane charge sheet with surface charge density sigma. Suppose हमने ये एक infinite plane charge sheet को कंसीडर किया है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी कि इसके एक यूनिट एरिया पर सिग्मा कूलम चार्ज मौजूद है। To determine the electric field intensity at a point P, which is at a distance small r from infinite plane charge sheet, we consider a cylindrical Gaussian surface of end surface area S passing through the point P. So किसी point P पर इस infinite plane charge sheet की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करने के लिए यदि ये पॉइंट P इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट से r डिस्टेंस की दूरी पर है, हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को इस पॉइंट P से पास कराते हैं। सच दैट इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो एंड सरफेस एरिया है, जो इस पॉइंट एंड सरफेस जो इस पॉइंट P से पास हो रही है और इस
एंड सरफेस का जो एरिया है वो S है। Thus the net charge present in the bonded volume enclosed by the cylindrical Gaussian surface is sigma s। क्योंकि इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के यूनिट एरिया पर सिग्मा कूलम चार्ज है, तो एस एरिया पर जो नेट चार्ज होगा वो सिग्मा एस होगा, और ये नेट चार्ज इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बॉन्डेड वॉल्यूम में होगा। तो एंड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बॉन्डेड वॉल्यूम में मौजूद नेट चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा फ्रॉम गॉस लॉ। And by using this concept, we can find the magnitude of electric field intensity at point P. For an infinite plane charge sheet with uniform surface charge density sigma, the magnitude of electric field intensity at a point which is at a distance r from the charge sheet is given by E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। तो इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी कि इसके एक यूनिट एरिया पर सिग्मा कूलम चार्ज प्रेजेंट है, और इसकी वजह से यदि हम किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना चाहते हैं जो इस शीट से r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। From the formula, it is evident that the electric field intensity at point P is proportional to surface charge density sigma। So for an infinite plane charge sheet with higher surface charge density sigma, the electric field intensity at a point in the space increases। तो यदि मैं एक ऐसी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट को कंसीडर करूं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई है, तो इसी पॉइंट P पर जो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्यादा होगा। और यदि मैं एक ऐसी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट को कंसीडर करूं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसी पॉइंट P पर जो इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट से r डिस्टेंस की दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पर डिपेंड करती है। Also, the electric field intensity at a point is independent of the distance of point R from the sheet. Thus, whether the point is nearer or farther to the infinite plane charge sheet, the electric field intensity at a point remains unaffected। तो इस फॉर्मूले से हम ये भी कंक्लूड कर रहे हैं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान पॉइंट P की शीट से डिस्टेंस r की जो दूरी है उससे इंडिपेंडेंट है, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इफ ये पॉइंट इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट से दूर हम ले जाते हैं, या इस पॉइंट P को हम इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के नजदीक ले आते हैं, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल रिमेन अनअफेक्टेड, यानी कि वो डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज नहीं होगी।
तो हम फाइनली यही कंक्लूजन निकालते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से किसी पॉइंट P पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हमें ज्ञात करना है तो वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पर निर्भर करेगा और उस पॉइंट की शीट से दूरी पर से इंडिपेंडेंट होगा। The direction of electric field intensity at a point is perpendicular to the cylindrical Gaussian surface passing through that point. तो इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से यदि हमें किसी पॉइंट P पर जो इससे डिस्टेंस r दूरी पर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ज्ञात करना है, तो इस पॉइंट P से हम एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पास कराई थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। If n is the unit vector perpendicular to the infinite plane charge sheet, then the direction of electric field intensity is along the unit vector, that is perpendicular to the plane charge sheet or in the direction of area vector of plane charge sheet. तो यदि हम इस प्लेन चार्ज शीट से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर n कैप को कंसिडर कर रहे हैं जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉइंट P पर हमेशा इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अलोंग होती है, और we can say the electric field intensity is always perpendicular to the infinite plane charge sheet, और ये हमेशा इस infinite plane charge sheet के एरिया वेक्टर के अलोंग होती है which is normal to the infinite plane charge sheet. I hope with this presentation you have got a good idea about the infinite plane charge sheet and about infinite long charge rod, which are the continuous charge distributions, and in these two cases we have determined the electric field intensity at a point and also determined the direction of the electric field intensity at that point. Thank you.